आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। We are having a real life interview training, rather real life interviews scheduled under Jodhpur branch. So I mean it's nothing to ask upon. All of you must be having an amazing experience. So you have learned a lot of things today when you were facing the top industry HRs, and this thing you will forever carry in your mind and your baggage. So a huge round of to yourselves who to face this interview and to crack this. We just hope that you crack this also. First standing from last 3-4 hours for the branch. A huge round of applause for the volunteers. You work for the branch die-heartedly to make the event successful. I must also thank the moderator, Sri Raj Kothra, for today's event. Thank you so much, sir, for sharing your wonderful insights. The branch staff, Akshay ji, Mohibur ji, Abhijit ji, it was an amazing contribution from you people also. Thank you everyone to make this show the first time in Jodhpur a success. All the industry HRs who have come here on this platform of Jodhpur branch, I would like to bid a good big thank you on behalf of our entire management committee. And this is an amazing feeling and opportunity that all the top industry leaders are here under this terrace. And for the newly passed out chartered accountants, thank you so much, sir. A huge round of applause for all the industry HRs. Further on the next mode, I would also like to invite the two pleasant personalities over here, CA Mahesh Purohit and CA Mohit Bafna, who are here to give us insights on what exactly the core area of working should be, how the path should be chosen, how the path should be followed upon. So again, a round of applause for both the dynamic personalities. And now to my dear students who have just recently removed the दो इंडस्ट्री प्लेयर्स हमारे सामने हैं, महेश पुरोहित जी एंड मोहित जी बावना. बोथ ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Mahesh ji is running a plastic manufacturing unit, and he has eagerly accepted our today's invitation. I am thankful to him. I would just request Mahesh ji to come before and just address the fresh chartered accountants and throw some insight for their future. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत लकी हैं कि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. और बहुत एक्साइटिंग डे होता है जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं. ये प्रोसेस खुद भी बहुत डिफिकल्ट है के साथ में, और कोई दो राय नहीं है कि अब करियर लाइफ में भले आप बिजनेस में जाएँ, भले आप प्रोफेशन में जाएँ, भले आप जॉब में जाएँ, चीज़ें आपका स्वागत कर रही हैं और आपके लिए एक्साइटेड हैं. आज के बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और एवर चेंजिंग वर्ल्ड में जो ये लास्ट डिकेड है और जो कमिंग डिकेड्स हैं, ये जो डिकेड है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है. और हमसे जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, या अगर हम प्रैक्टिस करते हैं या हम खुद का बिजनेस करते हैं, वो काफ़ी चीज़ें फास्ट चेंज हो रही हैं. तो चाहे तो हम इसको इंटरेक्टिव भी रख सकते हैं. जो एक जिस्ट है, अभी आप यंग हैं, सब एकेडमिकली बहुत स्मार्ट हैं, आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, तब आपका ये एग्ज़ाम निकला है. पर मैं 3 या 4 चीज़ें आपको समराइज करूँगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, एक बिजनेस वर्ल्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट से. जैसे इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेजरली हर सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में हर चैप्टर आप एटलीस्ट थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा कवर कर लें, ताकि जब एग्जाम का पेपर डिज़ाइन हो तो हर सब्जेक्ट में और हर चैप्टर में एटलीस्ट आप मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेकर आ जाए. इसी तरीके से जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक प्रोफाइल ऑफर करते हैं. तो पहले तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप अपना असेसमेंट कर लें. ये असेसमेंट कर लें कि आपका स्ट्रॉन्ग डोमेन कौन सा है. जरूरी नहीं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं तो आपका अकाउंटेंसी ही स्ट्रॉन्ग हो, या सिर्फ टैक्सेशन ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है मैनेजमेंट के लिए डिजाइन हो, राइट. हो सकता है किसी क्रिएटिव एफर्ट्स के लिए डिजाइन हो सकता है किसी एग्जीक्यूटिव चीज के लिए डिजाइन हो. तो सबसे पहले तो आप ये असेस कर लें कि आपका कोर क्या है. सेकंड, जैसे एग्जाम के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन के दौरान
हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्टनेस अपना रोल प्ले करती है, पर एक मिनिमम कंसिस्टेंट 3-4 महीने की पढ़ाई कैसी रहती है जब एग्जाम से पहले रहती है? कम रहती है, ज्यादा रहती है? कोई ऐसा बच्चा कह सकता है कि नहीं मैं तो 1 महीना भी नहीं पढ़ा और मैं पास हो गया? तो जब एग्जाम में हम पास नहीं हो सकते तो रियल लाइफ में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप यकीन जाने जब तक आप अपने डिलीवरेबल को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंस। We need to take it forward in that manner. So all the interviews which are pending right now, we will take it immediately after this session. As a part of today's event, a short address from our chairperson Pooja. I would request her to address the session. Communication. Since you were giving your exams, you had to become a CA. Fine. Everybody had that vision. Now what? Now we have become CA. This was the dilemma when I had cleared on 17th of July 2007. So now what? Now I have completed my CA. I have to do my business, family business. I have to join my family business, or I have to join practice, or I have to do some industry job. What? So get a vision of your life for 10-15 years where you want to be yourself, and then choose your career. We have understood something better about Quantify. It is doing something chartered accountants based out in Jodhpur Pali Road. Has probably as a chartered accountant in equity market. And आज की generation या आज की इस तादाद, I believe Marwari Cutlass is a known name. Youngsters can easily relate with a startup. Thank you. Before you, so that you can करना बात आईसीएआई की, जहां आप देख सकते हैं कि वे सारे सीए जो बनकर के आए हैं और सीए जॉब करे या अपनी प्रैक्टिस, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज यहां जोधपुर में जब ये पहला अवसर मिला है पूजा जी के साथ बात करने का कि जिस तरीके की ये नई नई बातें इनोवेशन करती ही रहती हैं, तो आज का ये जो मकसद रखा गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जोधपुर जैसे सीए की खान कही जाती है, कितने सीए इस बार निकले और आपका ये प्रयास कैसा रहेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये आप सभी को बता दूं कि जोधपुर से 150 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस बार निकले हैं, जो बिल्कुल लेकिन पूरे ओवरऑल भारत के प्रपोर्शन में जो मैं बस सुन रही हूँ, ओवरऑल भारत के प्रपोर्शन में एकदम बराबर प्रपोर्शनेट गया है। उसके बाद ये जो हमने वर्कशॉप अरेंज किया था, ये 3 डे वर्कशॉप था, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इसमें इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य यही था कि हम अपने जो न्यूली पास्ड आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको इंटरव्यू कैसे देना है, उनको ट्रेन करना है। पहले 2 दिन हमने प्रॉपर एक शेड्यूल दिया था, जहाँ पर श्रीकांत सर और नीलेश संचेती सर ने सभी को ट्रेन किया था कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, पर्सनल इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस। एंड फर्दर तीसरे दिन हमने जोधपुर के टॉप इंडस्ट्री लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट किया था और यहाँ पर बुलाया था, जहाँ पर उन्होंने जो न्यूली पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको मौका दिया, उनको सुना, उनका इंटरव्यू लिया, उनको ट्रेन किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, ताकि वो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोफेशनल्स के रूप में नजर आए। तो उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री लीडर्स, जो एचआरस हैं, वो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टिप्पणी, लर्निंग्स स्टूडेंट्स को दे और उनको प्रॉपर इंसाइट्स दे। एक छोटा सा सवाल शिक्षा जगत के लिए कि यहाँ जहाँ सीए आप कह रहे हैं कि थोड़े कम आ रहे हैं और जहाँ कॉमर्स को उतना अधिक बढ़ावा शिक्षा जगत में नहीं मिल रहा, 10 तक उसकी बात नहीं की जा रही, तो सरकार से ऐसा क्या कहना चाहेंगे जिससे कि कॉमर्स के लिए बच्चे आगे आ सकें? जो मैं शुरू से एक ही बात कह रही थी कि जो अकाउंट्स का, जो बिजनेस स्टडीज का टॉपिक 11th 12th में बच्चों को दिया जाता है, उसी को फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से
क्लास 6, 7 से ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने या कोई भी प्रोफेशनल चूज करें, सभी को टैक्स तो देना ही है सरकार को। तो सभी को पर्याप्त जानकारी हो, पैन कार्ड क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है। तो एक सब्जेक्ट जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी बोला जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके बकायदा सही सेशंस टाइमली लॉन्च कर दिए जाए, ताकि बच्चों को कॉमर्स का मतलब समझ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके की जरूरत लड़कियों को रही है, हम देख सकते हैं कि इतनी सारी वे शख्सियत जो देश को बहुत कुछ देगी, देश के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो देगी, और जहां राज्य सरकारें जो चाहती है वो सब कुछ इन्हीं में से निकल करके जाएगा। बिल्कुल हम कुछ ऐसे ही बच्चों से आगे बात करते हैं। सीए बन चुके हैं और भविष्य को वो कुछ देना चाहते हैं, क्या चाहत रखते हैं? हम ऐसे ही जो नए नए सीए भी बने हैं और क्या चाहत लेकर के आए हैं, आगे क्या करना चाहेंगे, देश के लिए क्या करना चाहेंगे, हम बात करते हैं इनमें से कुछ के साथ। तो नाम आपका? तो सीए कोमल मोदी। अब तो सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा, हाँ कैसा लगता है सीए बनने के बाद, और जब इस तरह की जहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी देश के अंदर, क्या कहेंगे? फायदा उठाएंगे, हर कोशिश करेंगे ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल हमारे साथ ऐसी एक और सीए, नाम आपका? हाँ कोमल जी, क्या कहेंगे? बहुत सालों से सपना रहता था, आज डेफिनेटली एक रेपुटेशन समाज में बनी है और देश के विकास में मैं अपना। बिल्कुल हमारे साथ सीए जगत की एक और ऐसी शख्सियत, नाम आपका? हाँ, तो क्या कहेंगी? ये जो एक खास बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉमर्स का जो अभी स्तर जो है, बच्चों की संख्या जो है वो पहले की तुलना में कम होती चली जा रही है, उनके लिए क्या? मुझे लगता है कि और भी लोगों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स फील्ड में अपॉर्चुनिटीज कम है या फिर कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपको स्किल है, आप टैलेंटेड हो तो जरूर कॉमर्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रो योर करियर। बिल्कुल, आप जो है सरकारी क्षेत्र में जाना चाहेंगे या निजी क्षेत्र में? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल। खुशबू जी, क्या खुशबू फैलाएंगे हमारे देश के लिए या विदेशों में जाकर काम करना चाहेंगे? बिल्कुल। शहर, अगर जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर वाले आसानी से शहर छोड़ते नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे साथ एक अपनी जगह सही है। जॉब में अगर ऐसा होता है कि भाई आपकी नीड पे डिपेंड करता है, अगर आपका पहले से ही कोई एक आपका इस्टेब्लिश एक बिजनेस है या फिर इस्टेब्लिश फॉर्म आपकी कोई है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत देना किसी एक फॉर्म में एक बहुत संघर्ष भरा टास्क होता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को फॉर्म बैठानी है अगर जोधपुर में या किसी भी अदर क्षेत्र में, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए किसी एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर अपनी योग्यता दिखाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपनी अपस्किलिंग करिए और उसके बाद ही कोई फॉर्म कोई ज्वाइन करिए। वरना मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय तक जॉब करिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, तभी आपको एक अपनी रियल वैल्यू पता चलेगी कि ये फॉर्म्स की क्या वैल्यू है। बहुत है। नाम आपका? हाँ, तो खुशबू जी, खुशी है कि खुशबू जी क्लियर है। तो खुशी जी, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं सीए बनने के बाद, और अब आप आगे क्या करना है? सपने कैसा है, सीए बनना मेरे लिए ड्रीम कम है, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिली के लिए। फर्स्ट टाइम सोचे जाते बस ये कि आप देखते थे कि मेरी बेटी सीए बन जाए एंड मैं उनको प्राउड फील करा सकी, ये मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। और आगे मुझे सीए कंपनी ज्वाइन करनी, सीए फर्म ज्वाइन करनी है, ताकि आगे अगर मुझे सीए फर्म की खोलनी हो तो उसमें हेल्प होगी। कैसा लग रहा है जब आपको ऐसा लगा कि हम जो है कंपनी सीए बन गई, इस दिन कैसा लगा आपको? ज़्यादा मैं अपने कज़न की शादी में डबल माहौल हो गया खुशियों का। ऑलरेडी सेलिब्रेशन चल रहा था, टाइम को मुझे बहुत खुशी का माहौल, मम्मी पापा
बिल्कुल, यहाँ आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रहा है हमको ICAI की जोधपुर ब्रांच से हम इंटरव्यू यहाँ देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज उनके लिए इंटरव्यू क्लियर करे तो यहीं से हम ओपन लेटर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहाँ इतने सारे लोग कोई जॉब की बात कर रहे हैं, कोई अपने खुद के ऑफिस लगाने की बात कर रहे हैं, आपका क्या विचार और थोड़ा उतना पड़ेगा। तो ये है कि एक बार जॉब लेके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके फिर बाद में देखा आइडिया क्या करते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन मेरे सोच है। बिल्कुल, नाम आपका? CA जतिन। आप क्या कहेंगे? साथ में यदि आपके पास क्लाइंट बेस है तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल, देख सकते हैं हर एक की चाहत कुछ अलग है और उसी चाहत के अनुरूप वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बाद अगर अपने ऑफिस की ज़रूरत है तो वहाँ जाना है। लेकिन जहाँ बच्चे जाएंगे अगर उन सक्सेस से न मिले तो बात अधूरी रह जाती है। हम जानना चाहेंगे आप ही की जुबानी, आपकी संस्था से किस तरीके से आप CA जो अभी बने हैं उनको आगे लाने का काम करें। देखिए, हम विष्णु प्रकाश आर्ट मीडिया लिमिटेड से हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में राजस्थान की एक अग्रणी कंपनी है। लगभग 30-35 साल पहले इस कंपनी की स्थापना ग्रास रूट लेवल पे हुई थी और आज हम उस पोजीशन पर हैं कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देश के करीब 15 प्रांतों में हम काम कर रहे हैं और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, वाटर सप्लाई, रेलवे, हाईवे, इरिगेशन, सभी विभागों में हम काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य कार्यालय जोधपुर में है, जहाँ अकाउंट का कार्य होता है, परचेजिंग का कार्य होता है और बिजनेस डेवलपमेंट का कार्य होता है। अकाउंट इन सब कार्यों में हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है ताकि अकाउंट के कार्य को वो भली भांति समझ सकें और उसको बड़ी बात में नियोजित कर सकें। और इसके लिए आज संस्था ने हमें इन्वाइट किया है कि आपको यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजने का सौभाग्य मिला और उनको अपने साथ एसोसिएट करने का अवसर मिले, तो उसको एस्टेश करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, कम्युनिकेशनल स्किल्स रखते हैं और उनमें से कुछ को सेलेक्ट करने में हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्हें हम अवश्य अवसर दें।